Hello and welcome to I'm the Best Mom. I hope you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom community, making your motherhood a joyful experience. We understand that motherhood is a journey of shared experience. We need a lot of collective knowledge and suggestion from specialized doctors and experts who would share their experience here. Cover Page Cover Story gives every mother an opportunity to ask their question, share their experience, challenges, and get an answer from the experts. COVID-19 is impacting every family. We have brought to you the expert advices on COVID-19 wave 2 in children, COVID-19 road to recovery, myths and facts with vaccine, COVID-19 during pregnancy, myths and facts around black fungus, balancing emotional well-being. This is a beautiful topic which we will be learning today. And today we are focused how it is going to impact the executive function of the children. Now, it's an honor to have Dr. Subhda Kirvatkar with us today, a renowned name in India. Dr. Subhda Kirvatkar is the national convener nurturing adolescents in school, Adolescent Health Academy, Indian Academy of Pediatrics for teachers, the executive board member, Adolescent Health Academy 2021, past president, Adolescent Health Academy and IAP Nagpur, director and counselor at Tenderbirds, Child and Adolescent Care Center, Nagpur. Dr. Subhda is with the National Scientific Journal and Parent Teacher Education publication. Her association is immense with a lot of books, newspaper, columns, TV, radio. In various ways, she has connected with many parents and teachers. Understanding adolescents, childcare, parenting. She is authority in parenting with more than 200 workshops with children in the school, adolescents with the life skill called design. More than 100 workshops on parenting. So it's an honor to have Dr. Subhda Kirvatkar at I'm the Best Mom Cover Page Cover Story. With this, I request Dr. Anuj Rastogi sir, please take on the session with Dr. Subhda ma'am. Welcome to us. Thank you, Deepman. And in last week, cover page cover story, we have talked about executive function of brain, especially in children. And this time we will learn few more tips from Dr. Subhda about the effect of COVID, this pandemic and lockdown over the executive function of brain in children. In the world population is around 2.2 billion, and out of that, 28% are children. And if you count 10 to if you count between 10 to 19 year of age, they are around 16%. And this pandemic has affected our life in a way, including children and adolescent also, in such a unprecedented manner. And the only way out was social distancing and isolation. So this hibernating cocoon has created a lot of anxiety and lot of problem. So what is anxiety? Anxiety is a perceived threat to something. It is just like a tiger is on your doorway, whether it is real or not. When tiger is on your doorway, you send some signal how to deal with it. जब आप एक कल्पना करने लगते हैं और इतनी this is so uncertain and scary news all over and very uncertain thing, and schools are also not open, so children are so much worried. They are listening what their adults are talking and what they are listening on the news, so that create anxiety in their mind. And there are so many tigers, कहीं कोई expire हो गया, कहीं किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी का business डूब गया, किसी ने suicide कर लिया. And there are so many tigers which are bombarding the child brain, and they do not have any went out. वो एक ही जगह बैठ गए हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे, लर्निंग भी नहीं हो रही है, and that is affecting their life. So welcome, Dr. Subhda. Can you please tell us about this? What is the effect of this pandemic and lockdown in the executive function of children? Right, sir. Thank you. Thank you for your kind words and very happy to be on this platform. So, जैसे सर आपने कहा कि there are so many tigers around और उसके कारण there is definitely an impact on the most important part of our body, the CEO, and that is the brain.
और ब्रेन में भी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारे बिल्कुल फोरहेड के पीछे वाला पार्ट है, वहां से जो बहुत ही इवॉल्व फंक्शंस है, यानी ऐसे फंक्शंस जो हमारे डेली लिविंग के लिए भी जरूरी है और हमारे रोज के जो हम थिंकिंग करते हैं, इमोशंस हमारे हैं, इन सबको कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, फोकस कोई एक्टिविटी पे करना, अटेंशन देना, ये सभी चीजें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आती है. And as you just rightly said that there is anxiety and lot of stress from various resources, from various areas, and there is no vent because these children, especially the adolescents, they are in a phase of life, ऐसी उम्र के पड़ाव पर है ये बच्चे कि उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ जाना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, रोज नए नए एडवेंचर करना, घर के बाहर जाकर खुद इंडिपेंडेंटली लाइफ को बिताना, ये सब उनके लिए बहुत जरूरी है और ये सब उनके साथ नहीं हो रहा है. सो देयर इज there are many issues that are problematic for these children, in addition to their daily activities which are sort of vacation. उसमें बहुत बार शेड्यूल नहीं है, उनको बहुत ज्यादा स्क्रीन पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, उनका पूरा लर्निंग स्क्रीन पे हो रहा है, जिसके लिए वो आदी नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुएटेड. इसके लिए उनका जो कॉग्निटिव, यानी जो बात समझने की या कॉम्प्रहेंशन करने की, लर्निंग करने की जो साधारण क्षमता है, वो भी बहुत कम हो गई है. मैं ये ऐसा नहीं कह रही कि हर बच्चे में हो रहा है, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रीन से ठीक से लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में उनके ऊपर जो स्ट्रेस है उसके कारण भी उनका अटेंशन और कंसंट्रेशन, जो चीज पे फोकस होना चाहिए लर्निंग के टाइम, वो नहीं हो रहा है. इसलिए वर्किंग मेमोरी उनकी जो लगती है हमें लर्निंग में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो अफेक्ट हो रही है. अटेंशन उनका कम हो रहा है, ठीक है, और उनका जो इमोशनल कंट्रोल रहता है या मैनेजमेंट रहती है, वो भी बहुत हद तक वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, इसके कारण बार बार इरिटेट हो जाते हैं, एंगर के बिट्स में चले जाते हैं, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है. मुझे अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने कहा कि मैडम, पहले तो ऐसा था कि हम कुछ घंटों के लिए पेरेंट्स से डील करते थे, अभी तो ऐसा है कि 24 घंटे उनके साथ डील करना पड़ रहा है. तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर एडोलेसेंट. और जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की जो चीजें हैं, स्पेशली जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको सोशल कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वो बहुत सारा उनका शेड्यूल फिक्स रहता है. तो ये सब डिस्टर्ब होने के कारण उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, एंग्री आउटबर्स्ट हो रहे हैं घर में, तकलीफ वाली चीज काफी हद तक बच्चे और पेरेंट्स दोनों झेल रहे हैं. बहुत अच्छा बताया मैम आपने, एंड आई कैन गिव यू टू सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस, व्हाट आर एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड हाउ दे आर अफेक्टेड. Like in the morning, if you go to make a cup of tea or a cup of coffee, and there is a routine, you go there and you have milk or water and in a utensil, and thereafter you lit the gas through a lighter. And if you don't find your lighter is working, then you need to sort something else, you have to resort it, you have to look for matchbox or something else, or it may not be close to your burner. तो बंदा जो जिसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन थोड़े डिफेक्टिव होंगे या वेल डेवलप नहीं होंगे, वो ऊपर आके बोलेगा या अपने घर में दूसरी जगह जाके बोलेगा कि आज लाइटर काम नहीं कर रहा है, सो चाय नहीं बनेगी. बट the person who has good executive function, he will find out some way out, या तो बाहर ढूंढेगा माचिस या बाहर से लेके आएगा. And then मतलब मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी जो लगती है कि टाइम पे कुछ चीजें सूझना या नया कुछ सोचना, वो गड़बड़ हो सकता है इसमें. और दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आपने खाना खा लिया है और when you see some cake or some rasgulla or something like that, then your organizational skill tells you this will be of 400 or 500 calories. Right.
Regulatory mechanism will tell you it will disturb your long-term goal of keeping yourself physically fit and keeping your body in shape. So these are your executive functions. So राइट, ये तो इम्पल्स को कंट्रोल करना वहाँ जरूरी है, वो हम एग्जीक्यूटिव हमको सिखाता है कि नहीं भाई ये नहीं करना है आपको। राइट, ये सही बात करते हैं, सिखाता है, चलें। समझाता है। एंड दिस हैज डिस्टर्ब बिकॉज कोई सोने का टाइम नहीं रहा, जागने का टाइम नहीं रहा, और पेरेंट्स भी थोड़े कैजुअल हो गए कि कहीं जाए, स्कूल थोड़ी जाना है इसको। एंड दे one room only or two room only where they are eating also, they are playing also, and they are doing everything. So Correct. स्कूल में वो जाके एक पैटर्न चेंज हो जाता था बच्चों का। जब वो हम्म, जाते थे तो वहां पे उन्हें पता होता था कि दे हैव कम टू लर्न समथिंग देयर। वो एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत मस्ती थी, बट इट इज नॉट दैट दे आर वाचिंग टीवी और दे आर प्लेइंग आल्सो और दे आर ऑलवेज ईटिंग समथिंग। So it is they have to sit on the chair and they have to follow a queue, और जब उनका नंबर आता था तो वो करते थे। तो ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। So what is the solution for this problem now? Because this is quite uncertain. I don't know what will be in next few months. राइट। तो जैसे आपने कहा सर कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेनिटी है कि कब ये खत्म होगा। तो ऐसा जब रहता है कि व्हेन वी डू नॉट नो कि ये चीज जो हम चाह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो पर कब होगा पता नहीं, तो एक साइकोलॉजी में हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि whenever you are faced with such a situation which is new and where you may not have much control over the situation, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सी चीजें मेरे हाथ में है, which what are the things in my control, what are the things which are not in my control. So obviously when will this pandemic end, will everyone get vaccinated, how much time and resources we are losing in controlling this pandemic, all these things we do not have any control. तो उनको थोड़ा सा वो थॉट्स को एक साइड में, जिसको हम कहते हैं कि बैक बर्नर पे थोड़ा रख देना चाहिए, और आज मैं क्या कर सकता हूँ मेरे लिए, व्हाट आर द थिंग्स इन माय कंट्रोल फॉर माय चिल्ड्रन, फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग। तो इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो जैसे अभी सर ने कहा कि हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर वो निगेटिव आ रही है तो हम उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम न्यूज देखेंगे जरूर, पर पूरे टाइम वही देखते रहेंगे कि कितना बढ़ गया, केसेस कितनी हो गई, कितने लोग गुजर गए, कहाँ कहाँ क्या क्या कम पड़ रहा है, ये सब हम बार बार अगर सुनेंगे तो हमारी निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो न्यूज को बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए एक शेड्यूल में उसको देखना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे घर ने इंक्लूडिंग द पेरेंट्स शुड मेक अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ द डेली लिविंग, क्योंकि कभी भी हम हमारे दिमाग की ऐसी ये बनी हुई है कि कोई सिस्टम में वो आता है, कोई शेड्यूल में आता है तो वो बहुत सिक्योर फील करता है। तो अगर बच्चों को ग्राउंडेड रखना है, उनको सिक्योर इमोशनली रखना है, तो उनको शेड्यूल देना बहुत जरूरी है। और ये शेड्यूल फिर कितने बजे सब लोगों ने उठना है, घर के कोर्स चोर्स जो है वो सब लोगों ने मिलके क्या क्या करने हैं, क्या हम साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ हम चीजें साथ में कर सकते हैं ताकि फैमिली का बॉन्डिंग रहे, हैप्पीनेस घर में रहे और शेयरिंग ज्यादा हो, एक दूसरे के टैलेंट को हम समझे, ये चीज हमने करनी चाहिए। फिर मेरा ये हो गया कि डेली चोर्स या डेली फंक्शन का मेरा क्या क्या ये है, और इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट को निभाना पड़ता है, बोथ फादर एंड मदर, क्योंकि वो रोल मॉडल्स है बच्चों के लिए। अगर वो अपना सही तरीके से दिखाएंगे, रोज करेंगे, तो बच्चे आम तौर पे उसको फॉलो करते हैं। कुछ कुछ बार नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमें शेड्यूल रखना, खुद को सही तरीके से मॉडल करना, ये दो चीजें हमने सीखी। उसके बाद एक चीज आती है कि सेंस रखा जाए, घर में सेंस रखा जाए। तो ये सेंस का मतलब क्या है, SENSE। तो पहला S है सेफ्टी का, तो वो तो हम सबको अभी पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबको करना है, कम बाहर जाना है, ये मेरे हाथ वाली चीज है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सेफ्टी हो गया। E का मतलब है एक्सरसाइज। सभी पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज
is a serious business for the child. Play and exercise. अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगा, उनके इमोशनल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज से ना ही बॉडी की फिटनेस रहती है, मेंटल फिटनेस भी रहती है। तो आधे घंटे का कम से कम पूरे घर में एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया है में तो टेरेस में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, घर के जिम में कर सकते हैं, घर के डाइनिंग टेबल पे टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सोचने लगे क्रिएटिवली तो बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी। तो ये एक बात हुई एक्सरसाइज, ई फॉर एक्सरसाइज। एन फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी हमारी इम्यूनिटी तो ठीक रखता ही है, पर न्यूट्रिशन अगर सही तरीके से ले, हम अगर जंक फूड कम खाएं तो हमारी अननेसेसरी वेट गेन नहीं होगा, वेट गेन से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और घर में सबने मिलकर अगर न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया तो पूरे घर का फिजिकल हेल्थ भी अच्छे से बना रहेगा। चौथा, और मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके कहना है कि बच्चों की स्लीप बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। फोर्थ एस इज फॉर स्लीप। स्लीप इसलिए अफेक्ट हो रही है, एक तो बच्चों को स्क्रीन से इतना जुड़ा हम देख रहे हैं कि वो देर रात तक सोते नहीं है, बार बार स्क्रीन से स्टिमुलेशन मिलता है ब्रेन को, और वो ब्रेन सही तरीके का रिलैक्स स्लीप नहीं ले सक रहा है। और एडोलेसेंट्स को तो 9 से 10 घंटे की नींद जरूरी है उनके ग्रोथ के लिए, उनके इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। तो वो उनको, और ये अगर स्लीप ठीक से नहीं रही तो जो भी दूसरे दिन लर्निंग करेंगे स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में, उसमें भी उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर रिलैक्स ब्रेन नहीं रहता है तो वो रिफ्रेश भी नहीं होता है, नई चीजें सीखता भी नहीं है। तो स्लीप इज फोर्थ एस, SENS हो गया। और लास्ट का ई का मतलब है कि इक्विलिब्रियम, सब चीजें बैलेंस में रखिए। अति, हम मराठी में कहते हैं अति तिथे माती, यानी ज्यादा कुछ भी करेंगे तो वो सही नहीं है। तो सब चीजों का अपना अपना तरीका है, अपना अपना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें। और इसमें कभी कभी इधर उधर हो सकता है तो थोड़ा पेरेंट्स ने लेट गो भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, पर आमतौर पे डिसिप्लिन बना रहे घर में। You said, ma'am has very rightly said, parents must tell to their children what to do rather than saying them what not to do. Because नॉट टू डू। parents, they keep saying ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो. When they come to the clinic of the doctor, या तो बोलेंगे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे, या बोलेंगे डॉक्टर पिटाई कर देंगे. Like, आप नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी है. What we must learn, we should praise our children, we should reinforce social reinforcement rather than material reinforcement. एक तरफ तो पेरेंट्स बच्चों को बहुत नेगेटिव बोलते रहेंगे और दूसरी तरफ रोजाना एक टॉय लाके देते रहेंगे. तो ये टॉय लाके नहीं, materialistic reinforcement is not going to work on their cognitive functions. So we should not talk to them negatively. और बोलने से पहले हर सेंटेंस में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए. Say for example what to do, and you have to tell them what to do and what not to do. जैसे मैंने कुछ सोचा कि मैं भी बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मेरा जो कंपनी है तारा किड्स, हमने बच्चों के लिए हम पिक्चरें बनाते हैं जय जी तारा. अब हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जय जी तारा न्यू गेम्स. तो हमारी पहली तारा वीडियो आएगी जो हमने जगह जगह से गेम्स इकट्ठे करके उसको 1-1, 2-2 मिनट में बच्चों को इंस्टिगेट करेंगे कि नए गेम खेलें ऐसे में. एंड बिकॉज गेम खेलना is not it improves your cognitive function. Absolutely. ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो ब्रेन का जैसा कि मैम ने बताया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो ब्रेन का जो सेक्रेटरी है, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, ब्रेन का आगे वाला हिस्सा जो सोचता है, समझता है और हमारे डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमारी डिसीजन को बेटर बनाता है. ये सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है इससे, खेल से. और जितना अच्छा हम मिलके खेलते हैं या गेम खेलते हैं नए नए, उससे हम नई नई चीजें लर्न करते हैं, प्लानिंग सीखते हैं, कंट्रोल सीखते हैं, हार और चीज सीखते हैं. सो मैम, आजकल ये देखा जा रहा है, देयर इज लॉट ऑफ, बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेल्टडाउन और लॉट ऑफ एग्रेशन इन चिल्ड्रन. सो हाउ दे कैन कोप विद इट, हाउ दे कैन डील विद इट in nicer way. Right. So this is very important, क्योंकि ये
स्पेशली ये जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए या लर्निंग डिसेबल्ड है, इन बच्चों के लिए थोड़ा हमें और ज्यादा पेरेंट्स को कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और ये उन्होंने लोड बोल के नहीं लेना चाहिए। जैसे हमको एक नई सिचुएशन में एडजस्ट करने की तकलीफ होती है, उनको और ज्यादा तकलीफ होती है। तो कंपैशन रख के, एम्पैथी रख के, उनके सह अनुभूति रख के उनसे ये सोचना चाहिए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जैसे ये नॉर्मल बच्चों के लिए तकलीफ है, इनके लिए ज्यादा तकलीफ इसलिए है, 3-4 इश्यूज रहते हैं। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनको सब चीज का एक शेड्यूल या एक कोई पता रहता है कि ये ऐसी ऐसी चीजें रोज करनी है, तो उसमें थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो वो अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अभी ये तो बार बार हो रहा है, इसके कारण उनको एक इसमें बंदिश जो रखा जा रहा है, इसके कारण उनको एग्रेशन उनमें बढ़ रहा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, एंगर बढ़ रहा है, और कभी कभी ये वायलेंट एपिसोड्स भी होते हैं। तो वो भी हम हमारे पेशेंट्स में देख रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए स्पेशली पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज कि किन चीजों से ये होता है, उनमें ट्रिगर्स जिसको हम बोलते हैं, वो ढूंढने की हमने कोशिश करनी चाहिए पेशेंटली कि क्या वो भूख लगने के कारण उस समय इरिटेट हो जाता है, या फिर उसको कोई एक चीज खेल रहा है, कोई चीज कर रहा है, उससे उसको वो उब जाता है, तब होता है। तो हमको ये थोड़े थोड़े उसके डिस्टर्बेंस के ट्रिगर्स शुरुआत में ही दिखते हैं। अगर वो हमने जान लिए तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने बच्चों के साथ इतना देर घर में रह रहे हो। अदरवाइज तो इतने बारीकी से उनको देखना भी हमें टाइम नहीं रहता है। पर अभी अगर वो हो रहा है तो हम उनके उन ट्रिगर्स को ढूंढने की कोशिश करें, पहली बात। और अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले हमें काम रहना है, हमें शांत रहना है, क्योंकि वो बच्चा डिस्टर्ब हो गया है और उसके डिस्टर्बेंस में अगर हम भी अपना आपा खो दे तो फिर हमें कंट्रोल करना सिचुएशन को बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए कामनेस, उसके लिए डीप ब्रेथ लेके ठंडे दिमाग से उस समय मैं क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ, ये सोचना जरूरी है। ठीक है, तो कामनेस ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, उस समय उनको बहुत समझाने की कोशिश मत करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चे को आपको कहना है कि सिट डाउन, तो मतलब वहीं बैठ जाओ, ऐसे आपको कहना है कि आप बैठो वहां। तो उसको नॉर्मली हम ऐसा कहेंगे कि देखो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, वो वहां पे कुर्सी है ना, वहां पे जाकर आप बैठ जाओ। इतनी सारी चीजें उनको उस समय कॉम्प्रेहेंड ही नहीं होगी, समझ में ही नहीं आएगी। तो शॉर्ट रखे, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है उसको बिल्कुल शॉर्ट रखना चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास कार्ड्स है, पिक्चर कार्ड, तो उसका उपयोग हमने देखा है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत अच्छे से हो रहा है कि उनको वो पिक्चर में शांत इसका सिंबल दिखाया या फिर कोई फोटो दिखाया या कोई जगह दिखाई जहां जाकर वो काम डाउन हो सकते हैं। गैलरी है, टेरेस है, या आंगन है, या कोई क्वाइट प्लेस है घर में, तो वो दिखाया तो वो वहां जाएंगे। मतलब उनको उस समय बहुत ही स्पेसिफिक, शॉर्ट और पिक्चर स्टाइल में अगर हमने इंस्ट्रक्शन दी तो वो ठीक रहता है। चौथी, आजू बाजू में जो भी रिस्की चीजें हैं, वो जो जैसे ग्लास का कुछ है या कोई शार्प चीज है, तो उनसे दूर रखने की उनको कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो। और अगर इसके बाद भी जो रेज बोलते हैं, वायलेंस बहुत ज्यादा उसको नहीं कंट्रोल हो रहा है, एक तो चेंज ऑफ वर्क या डिस्ट्रैक्शन से वो बहुत बार कंट्रोल हो जाता है, पर अगर नहीं हुआ तो कोई डॉक्टर को अपने लूप में रखिए जिनको आप पूछ सकते हैं। There are sometimes, especially in adolescent autistics, to become aggressive, we need to give some medicines to calm them down. पर इसके लिए डॉक्टर से सलाह करना जरूरी है। So you have very rightly said, children, especially those who are having special needs, they get irritated or agitated with and exasperated with anything when that is changed from their routine or anything that is changed.
तो उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है, वो बिल्कुल इस बात को, अपने रूटीन को चेंज करना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैम ये बताइए कि व्हाट आर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन चिल्ड्रन। आज ही एक मेरी क्लिनिक पे बच्चे आए थे, विराट चौधरी, ही वाज 7 years old, एंड मैंने विराट से पूछा, वो बुखार के लिए उसके फादर दिखाने आए थे, तो हाँ, ऐसे ही पूछ रहा था कि आपके घर में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ, क्योंकि आजकल हम जब भी बच्चे देखते हैं तो हमारे वो दिमाग में इंफ्लेमेटरी वही आता है पहले। थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि कोई बच्चा मल्टी एमआईएस की तरफ तो नहीं जा रहा है। हम्म। तो अब वो बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा था विराट, उसने बोला, अरे कोरोना, कोरोना नहीं, कोरोना नहीं होना चाहिए, कोई वायरल वायरल हो जाए तो सही है, हमारे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। You see, वो एक 6-7 साल का बच्चा कोरोना के बारे में इतना सुन चुका था, और सपोज उसके घर में या आसपास कहीं कोरोना हो जाएगा तो वो कितना डर जाएगा। बराबर है। ये देख के वो, हालांकि उससे उसके साथ मेरी जो चैटिंग थी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बट मैं अंदर से, मेरे मन में एक भय भी आया कि ये बच्चा कोरोना से कितना भयभीत है, इसको इतना बराबर है। डरा हुआ है, और इतना सब कुछ, क्योंकि डर किस लिए लगा है, क्योंकि वो इतना रोज सुन रहा है, रोज सुबह उठते ही हम्म। चला जाता है कि आज कितने हुए, 600 पॉजिटिव है, 600, वही वही। या जिस दिन 600 से लेस हो जाएगा तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हम्म। एंड अब डेथ क्या हुआ, आज आज 300 पॉजिटिव है, 15 डेथ, ऐसे रोज न्यूज़पेपर, और सबसे पहले जो पेरेंट्स बात करते हैं या शुरुआत करते हैं उसी सेंटेंस से करते हैं, और एक छोटा बच्चा वो ये सब सुन रहा होता है, और उसके मन पे बिल्कुल क्या विपरीत असर पड़ रहा होता है ये आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल। हम बताइए, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन चिल्ड्रन। हाँ, तो ये फिजिकल मेंटल सोशल इफेक्ट जो है, मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पिक्चर इसमें दिखाया गया है कि फिजिकल इफेक्ट क्या है। तो जैसे वेट गेन होता है, स्लीप में प्रॉब्लम होते हैं उनको, जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो नहीं मिलने के कारण, और फिर बहुत देर तक स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, इसलिए एक्स एंड पेन्स जो है, कभी पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, नेक में बहुत बच्चों क्या है, रिस्ट भी उनकी ये चला के शायद कंप्यूटर पे बहुत देर तक बैठने के कारण उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब फिजिकल इफेक्ट है, स्लीप का तो बहुत बड़ा उनके ऊपर है। और जैसे एग्रेशन या अटेंशन उनका अफेक्ट होता है, मतलब इमोशनल प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, एंग्री होंगे, या वायलेंट हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज पे गुस्सा आ जाएगा, अपना आपा खो देंगे, बहुत अपने सिबलिंग्स के साथ झगड़ेंगे। और सोशल मीडिया के कारण उनको बहुत, मतलब जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनमें ये अपने जेंडर या अपोजिट जेंडर के साथ जुड़ने की बहुत चाह होती है, और उसके कारण उनका सोशल मीडिया का यूज भी बहुत होता है। तो सोशल मीडिया से जुड़े भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे साइबर बुलिंग है या साइबर सेफ्टी है, वो उनको उसकी भी तकलीफ होती है, टॉन्टिंग होता है, ट्रॉलिंग होता है, तो उसमें भी उनके मेंटल इश्यूज, मतलब उनको ये होगा, एंजाइटी होगी या डिप्रेशन आएगा, या कभी कभी सेल्फ हार्मिंग भी वो करते हैं। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हम बोलते हैं, जो बहुत दूर तक जा सकते हैं, सभी को अभी ये चिंता है कि अभी तो कुछ ना कुछ करके 1.5-2 साल हम निकाल लेंगे, 2 साल निकाल लेंगे, लेकिन शायद इसका इफेक्ट बहुत दूर तक, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो उन्होंने झेला है इतनी देर से, इसके कारण, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, कि वो बहुत देर तक चलता है, शायद उनके आगे के एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम ला सकता है। और ये जो है, इसमें हम कहते हैं कि बॉडी, माइंड, इमोशंस, बिहेवियर, चारों चीजों के ऊपर लॉकडाउन से और कोविड से जुड़ी हुई स्ट्रेस के कारण इफेक्ट होता है। जैसे मैंने हेडेक, आई स्ट्रेन, बैक एक, स्लीप, वेट, ये तो बताया आपको। फिर अटेंशन, उनको स्क्रीन से स्टिमुलेशन मिलने के कारण अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं।
फटीग आता है। आपको भी पता है, हम लोग वेबिनार्स करते हैं उसके बाद हम कितना थक जाते हैं। वैसे तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं पर फिर भी मेंटल फटीग बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, स्ट्रेस के कारण भी वो अफेक्ट होगा। फिर वो जैसे आपने कहा कि डर गए हैं बच्चा, वो 7 साल का बच्चा जो आपने कहा कि वो इतने जल्दी उसमें ये सब इंफॉर्मेशन के कारण एक मैच्योरिटी या कहे कि कम एज में मैच्योरिटी आ गई कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वायरल रहा तो अच्छा है नहीं तो मुश्किल है ना। तो ये भी फियर उनके दिमाग में बहुत ज्यादा बैठा है, और एंगर और सैडनेस भी। और एक मैं देखती हूँ कि स्क्रीन टाइम के कारण जो वहां पर वो बच्चे क्या देख रहे हैं, कौन सी साइट पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टीचर्स से भी मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि बच्चे लॉग इन तो हो जाते हैं, अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं और कहीं कुछ करते रहते हैं। और वो कहीं कुछ क्या कर रहे हैं, कौन से साइट पर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वो उनके उम्र के लिए सही है, क्या वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, इसके बारे में मॉनिटरिंग या सुपरविजन हो रहा है कि नहीं पेरेंट्स के तरफ से, वो मुझे थोड़ी उसकी दिक्कत है। और जैसा मैंने कहा कि साइबर इश्यूज भी बहुत सामने आ रहे हैं। बच्चे कुछ भी शेयर करते हैं डिजिटल मीडिया पे, आपको पता है डिजिटल फुटप्रिंट्स दे आर नेवर इरेज। तो कुछ भी शेयर कर देते हैं, उसका मॉर्फिंग होता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो देयर आर प्रेडेटर्स ऑल अराउंड ऑन द साइबर वर्ल्ड। तो कहीं पर भी बच्चे को ये जैसे कोई इस पे देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई उनके सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, उसके बीच में पॉपअप्स आते हैं। वो पॉपअप पे जाने से वो कहीं तो भी ऐसी जगह जाते हैं वो बिल्कुल अनहेल्दी है उनके लिए देखना। तो ये सब चीजों के लिए बच्चों से बातें करना, उनको ये सब चीजें हैं ये समझाते रहना, मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए जो भी स्टेक होल्डर्स है बच्चों के मेंटल वेलबींग, फिजिकल सोशल वेलबींग के लिए, उनके लिए ये कहते रहना, इसके बारे में सही तरीके से कम्युनिकेट करते रहना और लिसन भी करना। बहुत बार ऐसा रहता है कि बच्चा कुछ बताना चाहता है पर हम सुनते ही नहीं है। हम उसको जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उस तरह से ध्यान देने की भी स्किल हमारी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर। आपने बताया कि हमें के साथ कनेक्ट ज्यादा बनाना होगा और बच्चा जो कुछ कहना चाह रहा है उसे आप यू शुड नॉट एट्रीब्यूट इट टू यू हैव अंडरस्टूड। आप उसको समझो वो क्या कहना चाह रहा है, और वो क्योंकि उसके पास जो इमोशन की प्रोसेसिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो कुछ शायद आपको बोलना चाह रहा है, वो आपको समझना होगा। और जब आप उसके साथ फ्रेंडली रहेंगे और पेशेंस से उसके साथ बैठेंगे तो अब आपको उसकी बात समझ आएगी। और ये चैलेंज बच्चों के साथ तो और ज्यादा कंपैशन से करना पड़ता है, क्योंकि वो तो उनकी वोकेबलरी भी कम रहती है, एक्सप्रेशन भी उतना अच्छा नहीं रहता, कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा, तो उनके साथ ये ज्यादा अच्छे तरीके से लिसनिंग करना पड़ेगा। राइट। सो मैम जी, जो अब आजकल घरों में जब आप एक घर में ही बैठे हैं और नेट आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है तो सब स्क्रीन पे ज्यादा लग गए हैं। तो बिल्कुल क्या स्क्रीन का कोई फायदा भी है, और स्क्रीन कितने घंटे का परमिशेबल है, क्या चाहे लॉकडाउन है तो भी हम कितने घंटे हमें स्क्रीन यूज करना बिल्कुल। चाहिए? तो जैसे आपने कहा कि स्क्रीन में कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोविड ने हमको कुछ बहुत सारे स्ट्रेस दिए, बहुत सारी चीजें हमारे जिंदगी के साथ गड़बड़ हो गई है, पर कुछ अच्छी बातें भी हुई है ये स्क्रीन के कारण। जैसे मैंने देखा है कि स्कूल का जो लर्निंग है वो उनका लर्निंग टाइम काफी कम हो गया, अभी 2-2.5 घंटे ही बच्चे पढ़ते हैं। तो एक तो उनका वो जो टोटल जाने आने का, स्कूल में इतने घंटे बैठने का, बहुत सारा ज्ञान जिसको बोलते हैं वो एक दिन में बहुत सारा पचाने का, उनका वो ये कम हो गया है। 2-2.5 घंटे देखते हैं और उतना ही रिकमेंडेड है। कोई भी स्कूल में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन रिकमेंडेड नहीं है। स्क्रीन टाइम के बारे में अगर आप बोलते हैं तो उसके कुछ गाइडलाइंस है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बहुत अच्छे गाइडलाइंस स्क्रीन टाइम के बनाए हैं। आप जरूर पेरेंट्स जो होंगे वो हमारे आईआईपी की वेबसाइट पर जाकर देखें, www.iap.org, उस पे ये सब पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस पब्लिश हो रही है। तो उसमें स्क्रीन के लिए ऐसा बोला गया है कि 2 साल से पहले स्क्रीन ना दिखाए तो अच्छा है।
सिर्फ कभी कभार ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ वीडियो पे बात कर ली या कोई अच्छा सा फैमिली वीडियो बच्चों के साथ देख लिया, उतना ही। उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम 2 साल के पहले नहीं करना चाहिए। इसके कारण ये है कि उनके ब्रेन की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से। वो जो न्यूरोनल कनेक्शंस बनने चाहिए और जो जितने फास्ट वो फर्स्ट 2-3 इयर्स में बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लाता है स्क्रीन। इसलिए स्क्रीन इज नॉट रिकमेंडेड बिलो 2 इयर्स। 2 to 5 इयर्स के इसमें जो बच्चे हैं वो बच्चों के लिए को व्यूइंग करके एक कंसेप्ट है। को व्यूइंग का मतलब ये है कि आप बच्चे के साथ देखें ताकि उसको सही तरीके का मैटर जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और जो उसके लिए हेल्दी हो, ऐसी चीजें वो देखें। तो ये कितना फॉलो होता है मुझे पता नहीं, पर ये आइडियल है कि 2 से 5 साल तक को व्यूइंग रहना चाहिए, और वो भी ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 से 1.5 घंटा। और वो जो को व्यूइंग है उसका स्क्रीन साथ में देखने का और एक यूजफुल बेनिफिट ये है कि वो टुगेदरनेस एक आता है, बॉन्डिंग आता है। माँ बच्चा या पापा मम्मी बच्चा साथ में देख रहे हैं तो उसमें कुछ उनको कॉन्वर्सेशन के पॉइंट्स मिलते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है। तो उसके कारण को-व्यूइंग इज अ वंडरफुल थिंग। उसके 5 साल के बाद हम लोग कहते हैं कि एक फैमिली मीडिया प्लान बनाया जाए जिसमें पेरेंट्स और बच्चे मिलकर ये डिसाइड करें कि हम कितना स्क्रीन देखेंगे। और वो जो स्क्रीन देखेंगे उसमें 2 प्रकार के स्क्रीन होंगे, एक प्रोडक्टिव स्क्रीन होगा और एक एंटरटेनमेंट वाला स्क्रीन होगा। तो प्रोडक्टिव वाला यानी जो आप कुछ उसमें स्किल सीख रहे हैं, कुछ ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ क्लासेस कर रहे हैं, तो वो 3 घंटे का हो और उससे आधा रिलैक्सेशन का स्क्रीन होना चाहिए। तो ऐसा पूरी फैमिली ने प्लान अगर बनाया तो पेरेंट्स भी उसमें रोल मॉडल जरूरी है। तो पेरेंट्स लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और बच्चों को बोलते हैं आप मत देखो, तो वो तो नहीं होगा। तो पूरे घर ने वो प्लान बनाकर उसके अकॉर्डिंग, और इसमें बच्चों को शामिल करना चाहिए बनाते समय, ताकि वो भी अपने इनपुट दे सके, वो भी बता सके कि नहीं भाई आज मुझे फुटबॉल की मैच 90 मिनट्स की देखनी है, तो फिर कहीं ना कहीं दूसरी चीजें एडजस्ट की जा सकती है। तो ऐसा एक स्क्रीन टाइम का हमारा प्लान रहना चाहिए। स्क्रीन डिजिटल मीडिया के साथ एक नया वर्ड हुआ है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने इंस्टाग्राम खोला तो उसके बाद फेसबुक हाँ बिल्कुल खोला। बिल्कुल। फोमो एक फोब्लो फोब्लो भी है सर। फोब्लो, फोमो तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं और एक फोब्लो भी है। तो ये दोनों चीजें सोशल मीडिया से बहुत जुड़ी है। राइट, दैट क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। पूरा टेंशन स्पान डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल। मैम, व्हाट इज रूल ऑफ 20? हाँ, तो ये रूल ऑफ 20 जो है ना, ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से। तो ये देख रहे हैं आप बच्चे को, जब वो ऑनलाइन कुछ भी देख रहा है तो दिस शुड बी द आइडियल पोजीशन। तो ये स्कूल्स ने भी बताना चाहिए, पेरेंट्स ने भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके आई लेवल है, आई लेवल जो है वो स्क्रीन के टॉप से मिलनी चाहिए, वहां पे हॉरिजॉन्टल ये रहनी चाहिए, ठीक है। और जो शोल्डर्स है वो रिलैक्स होने चाहिए, बैक को सपोर्ट रखना जरूरी है, नीचे भी एटलीस्ट थाई तक चेयर का सपोर्ट आना चाहिए। फिर ये जो ये राइट एंगल या 190 to 110 थाइज और नीज का एंगल आना चाहिए। और जो फीट है वो नीचे जमीन से बिल्कुल सधे हुए और पैरेलल रहने चाहिए। जो हाथ है उसके उसको भी सपोर्ट की जरूरत है, रिस्ट और ये फ्री रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ये करेंगे तो दिस इज द करेक्ट पोस्चर।
और इसमें ये करते समय भी हमने रूल ऑफ 20 फॉलो करना है। रूल ऑफ 20 का मतलब है एवरी 20 मिनट्स you take a break and what do? You look at an object which is 20 feet away from your eyes, यानी दूर के किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखना चाहिए 20 से 40 सेकंड तक, और फिर स्क्रीन के तरफ देखो और एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेकर बाद में फिर से स्क्रीन का व्यूइंग करो। इससे आपके आंखों में जो स्ट्रेन आता है स्क्रीन के कारण, जिसको हम कहते हैं कि आईज का वाटर जो रहता है, जो एक फिल्म रहती है वाटर की जो रहनी चाहिए वो रहती नहीं है कंटिन्यूअस स्क्रीन के कारण, तो वो ये हो जाएगा। Right, ma'am, right. So in last, how can we keep our home happy and healthy in this season, Right, this right. pandemic? So it is again, I think the gist of everything that we have discussed for past few minutes. तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो जो मैंने सेंस की बात कही वो चीजें करनी चाहिए, सेफ्टी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड इक्विलिब्रियम, ये जरूरी है। दूसरा, टुगेदरनेस फैमिली में लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए। घर के जो चोर्स है वो सबने मिलके करना है, उसमें शेयरिंग करना है, और अपने जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल शेड्यूल हम कितना बना सकते हैं और उनको अलग अलग तरीकों से कैसे एंगेज कर सकते हैं, उनका भी एक रूटीन शेड्यूल हमने बनाकर उसमें उनको ढालने की कोशिश करनी है। एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कम से कम निगेटिव न्यूज हमारे घर में आए ऐसी कोशिश करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा अगर आपसे कुछ पूछता है नेगेटिव चीजों के बारे में तो उसका जरूर जवाब दे। अगर आप नहीं देंगे तो वो और कहीं से वो ढूंढने की कोशिश करेगा और वो शायद गलत होगा। तो और दूसरा ये है कि उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे से कुछ बातें छुपाई जा रही है। तो वो अगर नहीं करना है हमको तो घर में बराबर से ये रह सकता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग और हैप्पी और हेल्दी होम हमारा बना रहता है। बहुत अच्छा बताया कि बच्चे को अगर कोई नेगेटिव न्यूज पता भी चलती है और वो जानना चाहता है तो उससे झूठ ना बोले, सब कुछ ठीक है ऐसा ना के, और बच्चे को देखें और उसको सही बात उसकी समझ के अनुसार समझाएं। दीपमान जी, अगर कोई सवाल है मैम से तो आप प्लीज पूछिए। हेलो दीपमान। Yeah, thank you so much. Someone asked about the website, so I'll repeat the address. I have written. We have already written. Right. So www.iap.org. Right. So, ma'am, thank you so much for your lot of insight to the current challenges, and a few questions we have. And one of the question is from Anjali Tagis. Is asking, and the kids are 5 year and 8 year. What and how parent play significant role nowadays to make the child mentally happy, even when we have nothing in our control? I think she's asking the question on behalf of the entire India. Right, absolutely. And a very valid question she has asked. Yeah, so there are many things, ma'am, which are not in our control, but as I said, there are many in our control also, like keeping that sense in the family, trying to be effective parents who can give a positive discipline to the child, जिसको बार बार टोकना रोकना या छोड़ के क्या क्या अच्छा कर रहा है उसके लिए एनकरेज करते रहना, ये आपके लिए अच्छा टाइम और चांस है जब आप ये सब उनके लिए कर सकते हो। दिस इज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग एंड प्रोबेबली इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू विच आर इन योर कंट्रोल, उनको करते रहिए। और दूसरा मुझे ये कहना है कि आप खुद पर विश्वास रखिए कि यू आर गुड पेरेंट्स। ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत हेल्पलेस है, हमसे बहुत चीजें नहीं हो रही है, ऐसा सोचे बिना ये सिचुएशन में क्या बेस्ट हम कर सकते हैं वो हमने करते रहना चाहिए।
Right. Thank you so much, ma'am. Dr. Anuj, there is a question. Hello, Dr. Anuj, you are there? Has he left? Let me continue with the other question, ma'am, with you by the time Dr. Anuj join. So this is from Puspita Das. He is asking, my kid is 12 years and tries to play game all the time. He says that he cannot stop playing. How can I help? Right. So, madam, I deliberately did not put that in my initial discussion because I wanted this to come from a parent. I am myself as a counselor seeing lot of children getting addicted to games, right? Now, addiction is a very big word that I am using. It has definite connotations कि कब इसको addicting कहा जाए, पर अभी जो आपका बच्चा कर रहा है वो screen overuse for games ऐसा हो रहा है, ठीक है? और वो बोल रहा है कि वो कोशिश करता है फिर भी वो रुक नहीं पाता. तो यहाँ पे आपको उसको वो इम्पल्स कंट्रोल जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है हमारा उसमें उसको हेल्प करना पड़ेगा. तो इम्पल्स कंट्रोल में हेल्प कैसा किया जा सकता है कि यू कैन बी टुगेदर, मतलब उसको ये उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि जैसे ही 1 घंटे का या जो भी अलॉटेड टाइम है आपका गेम जरूर खेलो आप. ऑफ कोर्स पबजी जैसे बैंड गेम्स नहीं खेलने हैं, जो खेलने हैं वो वैलिड और लीगल गेम्स ही खेलने हैं. और पर वो जो खेल रहा है तो उसमें मैं देखती हूँ कि बच्चे 3-3 बजे जाके कोई टीम में फुटबॉल खेलते हैं, मतलब क्लासमेट सब. तो इस टाइप का अनहेल्दी अगर होगा तो उसके लिए तो आपको फॉर्मली नो बोलना है. लेकिन अगर दूसरा गेम वो खेल रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि 1 घंटा अगर हमने आपको इसके लिए दिया है तो 1 घंटे के बाद आई विल कम इनटू द पिक्चर एंड यू हैंड दैट फोन ओवर टू मी, ठीक है? लेकिन अगर आप ये हम 7 दिन अगर ये कर पाए, you could control your impulse with my help. So maybe on 8th day I'll give you few more minutes or half an hour more for your game. So there is both positive reinforcement plus helping impulse control, ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए. और वो जो गेम खेलते हैं उसमें भी ऐसा देखती हूँ मैं कि कुछ बच्चे उसमें कुछ पैसे लगा के भी खेलते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. अगर वो करता है तो वो क्या करता है इसके तरफ आप पहले ध्यान दीजिए. देर आर मेनी इलीगल गेम्स which these children download and then they play in teams and they go on going to higher one after another higher levels. और उसी की फिर लत लग जाती है, चस्का लग जाता है कि मुझे आगे जाना है, मुझे और आगे जाना है, अगले लेवल में जाना है. और ये नॉर्मल और नेचुरल है. जैसे वो अगर आपका बच्चा 12 साल का है तो ही इज इन अर्ली एडोलेसेंस. तो अर्ली एडोलेसेंस में इम्पल्स कंट्रोल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 12 से 15 साल के इसमें बहुत सारे बाकी भी एडिक्शंस लगते हैं बच्चों को. आप अगर कोई एडिक्ट से पूछो तो वो हमेशा या बहुत बार यही बताता है कि जब मैं 14-15 साल का था तब मुझे ये लत लगी. तो इसका मतलब है कि तब वो बहुत कठिन है कंट्रोल करना. इसलिए टाइमली उसके इंटरवीन करना और उससे बात करके ये जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही शांत और सही तरीके से होना चाहिए. अगर आप एक ब्लेम करेंगे वो दूसरा ब्लेम करेंगे, ऐसा ब्लेम गेम चालू रहेगा. या फिर आप इस तरह के टॉन्ट्स मारोगे कि आप तो हमेशा ही उसमें लगे रहते हो, आप तो गेम ही खेलते रहते हो. इस तरीके का न बोलते हुए उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ. इस तरीके का आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. तो बहुत बार ये हो सकता है. थैंक यू डॉक्टर सुब्बा. लेकिन एक बात है कि अगर ये बहुत देर, मतलब हम कब इसको एडिक्शन कहेंगे? इफ इट कंटिन्यूज फॉर मोर देन 3 weeks and is affecting his daily function, मतलब सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, स्कूल का टाइम नहीं कर रहा है, तो ये सब उसके डेली फंक्शनिंग पे अगर इस गेमिंग का इफेक्ट हो रहा है, वो 3 हफ्तों से ज्यादा का हो रहा है, तो दैट इज समथिंग विच नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन. यानी she must talk to a counselor or a pediatrician or a psychiatrist. Thank you, ma'am. Dr. Anuj, though Dr. Subda is saying even the Indian Academy of Pediatrics is advising
the school hour should be 2 hour. But many times we are seeing it's not two, it's much more than that. The kids also spend long hour in different posture. The question is the side effect could be headache, maybe constipation, and so many other challenges it is happening, and the less amount of physical activity by the children, and the functional constipation which is happening. Sir, any advice, because this is happening quite a lot and we are getting a lot of question in and around that. Dr. Anuj, please. Uh, First of all, we should fix the circadian rhythm. We should have a fixed time of sleeping and fixed time of waking up. So वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी 2 बजे तक सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 10 बजे सो गए। उठने के लिए पेरेंट्स को लगता है कि इसे स्कूल तो जाना ही नहीं है, वो उठाते ही नहीं, उसको सोने दो इसको। तो ये एक फिक्स टाइम जब तक नहीं होगा, उसके बाद बाउल हैबिट कभी भी ठीक नहीं होती है। सेकंड, आपकी डाइट। डाइट के अंदर जितना वीट प्रोडक्ट लिमिटेड होगा, आने वाला समय वीट के बिना ही जीना है सबको, ये ऐसा होएगा ही, जो मुझे लगता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दोज पीपल दोज हु आर नॉट ईटिंग वीट, दे आर हैविंग लेस डिसीज। आई पर्सनली बिलीव सो। तो ये जो सूजी मैदा की चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, वो कट डाउन होंगी और उसमें फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा बढ़ेगा। एंड फर्स्ट थिंग इज रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। आपका खाने का, नाश्ते का टाइम है, उसके बाद अगर आप एक टाइम टेबल फॉलो कर लें कि इतनी घंटे इसको स्टडी करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, दे शुड मेक ए सेपरेट प्लेस फॉर स्टडी। वो जहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वहाँ पे स्टडी करना रखें। अगर आप पे एक एक्स्ट्रा रूम है तो उसे क्लासरूम की तरह डेवलप कर दें आज से ही। तो बच्चे उससे ना, उनका जो रेगुलेटरी पार्ट है वो और बेटर होगा एंड दे विल लर्न बेटर। जहाँ तक रही स्कूल की बात, 2 घंटे का स्कूल तो मेरी निगाह में पूरा इनसफिशिएंट है। स्कूल का टाइम थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, बट स्कूल का काम स्कूल में ख़त्म हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द होम। ये मेरा पर्सनल बायस है, मे बी आई मे बी रॉन्ग। सो जहाँ तक रही हेडेक की बात, ये सब जो नेगेटिव फीडबैक ब्रेन को मिलता है आजकल, जब मेरे क्लिनिक पे बच्चे आ रहे हैं तो 90% बच्चे फंक्शनली होते हैं। पहले 20% बच्चे फंक्शनल होते हैं, अब 90% फंक्शनल है। या तो बुखार को लेके परेशान है, या पेट में गांठों को लेके परेशान है, जो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड जो बिल्कुल नॉर्मल है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत परेशान है। तो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की डाइट चेंज नहीं करना जानते हैं। कुछ बच्चे दूध ही पिए जाते हैं, अब वो उनकी मदर से कहो कि आप इसे दूध कम पिलाएंगे, कुछ खाता ही नहीं है। सो दे ऑलवेज से लाइक दैट एंड दे आर नॉट रेडी टू चेंज। या उनका मकसद ये होता है कि मैंने अभी कहा इसको और अभी ये घिया तोरी खाने लगे। they have to understand it first you have to reinforce correct behavior for few days, then it become a pattern. It's not that कि आपने आज कहा और आज ही हो गया। वो बच्चा है, बड़ा आदमी भी डर के चेंज होता है, बिना डरे चेंज नहीं होता। आज किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा तो कल से वो घी खाना बंद कर देता है, बट उससे पहले आप उससे कहो कि आप लिमिट कर लो तो नहीं करेगा। 80 साल का बूढ़ा भी जब हार्ट अटैक की कगार पे होता है या हार्ट अटैक हो जाता है तो हमारे हार्ट वाले डॉक्टर से पूछता है कि वो सिगरेट बीड़ी का क्या करना है। तो हार्ट वाला डॉक्टर कहता है जी आपने 80 साल तो पी लिया, अब क्यों रोकते हो। इट इज समथिंग लाइक दैट। सो जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं तब हमें ये जागृति डेवलप होती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सिमिलरली बच्चों के साथ आपको जो चीज चेंज करनी है वो शुरू से ही चेंज करके चलेंगे, शुरू से डिसिप्लिन करके चलेंगे, तो कभी ये एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम या बड़े होके ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि आपने बच्चों को कभी ना कहा ही नहीं है। जो उन्होंने मांगा, जब तक आपके बस का था आप देते रहे। फिर वो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि आपसे वो यू कांट अफोर्ड टू गिव इट टू देम। फिर बच्चों में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगती है, या बहुत ज्यादा नैगिंग करने से कि आप तुम इस कमरे में क्यों बैठे हो, बाहर मत जाना, पानी में मत जाना, लाइक बहुत ज्यादा नैगिंग करने से भी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। Thank you, Dr. Anuj. So all the attendees, even who are watching us on the social media platform, it's so important. The child could be at any age, be it a toddler or to adolescent. Every child has some concern, some question you are having. I must say there is a beautiful book written by Dr. Anuj Rastogi, which is available for all of you.
It's an e-book called I'm the Best Mom, a handbook for vital insight for mothers of infants to teenager. Eating habits. Today, during the discussion, Dr. Subda also said the 5 things: exercise, development, nutrition, sleep, and the equilibrium. So we need to understand the importance of it. Even water intake is very, very important. So please get your e-copy of this book. It's absolutely available on the I'm the Best Mom. And as we have also discussed exercise, yes, it is very, very important. So please subscribe and get the benefit of yoga for children. It's 30 minutes of exercise every day, but that keeps the child very, very healthy. So I would request, please log into I'm the Best Mom, get your e-copy of the book, which is written by Dr. Anuj. So this is a very, very informative and easy reference for all of you. Please have a copy of that. Dr. Anuj, I raised one point related to water, and the intake of water is reduced because of maybe long hours staying inside the home, or how it is affecting the overall health. No, it is not that. It depends upon the weather also, and most of the thing. If you talk about child who is 6 months old, his basic diet is milk, and milk is 90% of water. So Right. it varies. So it is not. Few people think constipation is occurring in children because of less water. It is not so. Right. There is something, some hidden factor, maybe some genetically engineered weed that is causing that, or there is some mutation has occurred into the rectum as a whole in the whole population. It is more anteriorly placed that is causing constipation. Or this is digital media. There is a lot of sticking over the digital platform, and children, they do not want to miss a second of whatever game they are playing on the screen. So they will go for a natural call and they will come back immediately. And parents are not aware how much they have evacuated or how much they have not evacuated. So they flush it, and mother thinks everything is fine. And he has passed the stool. So there are so many things. It's not very easy, and only water should not be blamed for it. Thank you. And Dr. Subda, today you could cover both the aspect with the atypical children and children with neurotypical. So I'm sure there would be any question. Please keep on posting it on the I'm the Best Mom. We would like to take up this question in subsequent episode of Cover Page Cover Story. Dr. Anuj, anything more to add on today? The take home message of today's session is you should tell your child what to do. You should not tell your child what not to do. Tell them what to do. आप उसे शिफ्ट करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि वो ये गेम ना खेले तो क्या करे. So you tell them, you give them little task. For 10-15 minutes you ask them to read this story. अब बच्चे को चाहते हो आप उसको स्टोरी पढ़नी है तो आप भी थोड़ी देर बैठ के पढ़ो उसके साथ. आप अपनी स्टोरी पढ़ो, वो दूसरी स्टोरी पढ़ेगा. Then it is it will be a family affair. But you are always looking for the soap opera जहाँ extra marital affairs के अलावा और कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है. So what our children are going to learn out of it? So with this note, we should close the session now. Right. Thank you so much, Dr. Subda. It is wonderful having you today, and thank you so much, Dr. Anuj sir, for today's session. And thank you all the attendees. Please pass on the benefit of this and do visit to I'm the Best Mom to see the previous episode. Thank you so much. Have a wonderful night. Bye.